جانب سے انٹر اور میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز کو نشستوں پر جا کر مبارکباد دی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر طالب علم کو 5 لاکھ میڈل اور سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے 408 پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں شاندار تقریب۔ طالبات کے میوزک بینڈ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خیر مقدم کیا۔ 9 بورڈز کے پوزیشن ہولڈر طلباء کے لیے 173.8 ملین کا ریکارڈ کیش پرائز۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کو 63 ملین روپے کیش پرائز دیے گئے۔ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو 40.8 ملین اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 29.2 ملین کیش پرائز دیا۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالب علم کو 5 لاکھ میڈل اور سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ سیکنڈ پوزیشن ہولڈرز کو 3 لاکھ میڈل اور سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جبکہ تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کو 1 لاکھ روپے کیش، میڈل اور تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر طلباء کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پنجاب پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ ہونہار بچوں پر مجھے بطور ماں بہت فخر ہے۔ جتنا پنجاب کے بیٹوں نے پرفارم کیا اتنا ہی بیٹیوں نے بھی کیا۔ ایک مسلمان ٹاپر بچے کا استاد مائنورٹیز سے تھا، ایک مائنورٹیز کے ٹاپر بچے کا استاد مسلمان تھا۔ یہاں سب برابر ہیں، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ میں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پورا صوبہ برابر ہے۔ میں آپ سب کو ایک مٹھی کی طرح رکھنا چاہتی ہوں، نہیں چاہتی کہ کتابوں یا یونیفارم کے لیے آپ کو والدین کی طرف دیکھنا پڑے۔ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر۔ جب آپ تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی، اپنے ماں باپ کی زندگی میں جو بہتری لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ایکولائز کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی پھر امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان بچوں کے جو خواب ہیں وہ چھوٹے نہیں، وہ آسمانوں تک پہنچے ان بچوں کی شکل میں ماشاءاللہ۔ پنجاب کے بیٹوں نے پرفارم کیا ہے، اس سے بڑھ کے پنجاب کی بیٹیوں نے پرفارم کیا۔ ایک مسلمان بچی نے جس نے ٹاپ کیا، اس کا جو استاد تھا وہ مائنورٹیز سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک مائنورٹی کا اسٹوڈنٹ جس نے ٹاپ کیا ہے اس کا استاد جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پنجاب۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کا یہ کام نہیں کہ ووٹ لینے آ جائے اور پھر غائب ہو جائے۔ ریاست ماں ہوتی، دکھ تکلیف اور مشکل میں ساتھ ہونا چاہیے۔ عظمیٰ بخاری اور سلمہ بٹ دن رات کام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی لڑکی کچھ کرنا چاہتی ہے تو وسائل کی کمی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر مریم خان کو سٹیج پر بلا کر مثال پیش کی۔ ایک بچی نے خواہش ظاہر کی کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ شجاع آباد میں سیلاب کے بعد متاثرین اپنے مکان اور کھیتوں کی بربادی دیکھ کر پریشان۔ موضع دھوندو کے رہائشی محمد عباس کی 10 سال کی محنت سے بنایا گیا گھر بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ محمد عباس اجڑے آشیانے کو دوبارہ آباد کرنے میں مصروف ہے۔ سیلاب کی تباہی کے بعد زندگی کی بحالی کی داستان۔ شجاع آباد کے دیہی علاقے موضع دھوندو میں حالیہ سیلاب نے ہولناک تباہی مچائی۔ ہر طرف مکانات، ملبے کے ڈھیر اور کھیت اجاڑ نظر آتے ہیں۔ تباہی کا یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کے باوجود لوگ اپنے گھروں اور زندگیوں کو دوبارہ بسانے کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے محمد عباس کی، جو اپنا گھر دوبارہ تعمیر کرنے میں مصروف ہے۔ عباس نے 10 سال کی سخت محنت اور مزدوری کی کمائی سے اپنا آشیانہ بنایا تھا جو سیلاب کی بے رحم موجوں کی نظر ہو۔ سیلاب سے متاثرہ محمد عباس کا کہنا ہے کہ یہ میری 10 سال کی محنت تھی جو پانی میں بہہ گئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ حکومت کا سروے کب مکمل ہو کون جانے، ہم اپنے بلبوتے پر ہی کام شروع کریں، ہمیں اپنے بلبوتے پر ہی کام شروع کرنا پڑے گا۔ میرا مکان ساتھ والا یہ ہے جو یہ کریک ہوا پڑا ہے، پرلی طرف جو ہے 4 دیواریں گری پڑی ہیں، سارا کچھ۔ ہمیں حکومت کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا بھی کوئی فنڈ وغیرہ یا کوئی چیز نہیں ملی۔ اب سنا ہے کہ سروے کے لیے پٹواری صاحبان آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ ہو سکتا ہے کل پہنچ جائیں، پرسوں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ باقی کسی قسم کی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ شہری محمد عباس کا مزید کہنا تھا کہ اپنی زندگی میں نہ ایسا سیلاب سنا نہ دیکھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصور انصاری، روہی، شجاع آباد۔ لیاقت پور میں حالیہ سیلاب تو گزر گیا، مگر بیٹ کے مکینوں کی مشکلات جوں کی توں ہیں۔ بے سہارا بزرگ خواتین زیادہ پریشان حال ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ کی کہانی جو ہے وہ حسن محمود اپنی اس رپورٹ میں بتائیں گے۔ لیاقت پور بیٹ نور والا بستی غلام رسول کی بزرگ خاتون اپنے 2 معذور بیٹوں کے ہمراہ محفوظ مقام پر منتقل تو ہوئیں، مگر سیلاب کا خطرہ ٹلنے پر واپس آئیں تو ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ نہ ہی گھر کا کوئی کمرہ تھا نہ سامان۔ گھر کے کمرے پر درخت گرنے سے کمرہ زمین بوس ہو گیا تھا، کچھ سامان ٹوٹ گیا تو کچھ سیلابی پانی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ جنا سیلاب آئے نا اتنا کوئی بھی کہیں لنگتے آیا، اسی آپ دی مدد آپ جگہ حویلیاں میں ڈھیر تھولیاں ڈیتین سے درخت گر گئے جا دوتے تلے بہ گئی ہے۔ مقصد ہے ساڈا اللہ واغے سے حکومت کو درخواست ہے سارے نال تعاون کرے، سا کوئی جا برباد دے۔
बुजुर्ग खातून अपने माजूर बेटों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। माजूर बेटे घर की कच्ची दीवारें बनाने लगे। दूसरी तरफ घर में फाकों की हालत है। माजूर बेटे और बुजुर्ग खातून को अद्वियात की भी सख्त जरूरत है। दिन गुजरने के साथ साथ हालात का मुकाबला करने वाला बेसहारा खानदान शदीद मुश्किलात और परेशानियों में घिरता जा रहा है। मैं अंधी मुंधी आ, मेरे को खुदा कम सवाबी आ कोई जगह नहीं। इवें रांदे पैसे अब्बा सा इवें गुजरंदे पैसे इवें सारा कई जगह मेरा पुत्र मंजूब है। मेरा एक वाला दिमाग दी कमजोरी है। मुतासरा खातून का कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द बेट के इलाकों में नुकसानात का सर्वे करवाए ताकि बेसहारा लोग तरजीही बुनियादों पर घर का काम मुकम्मल करवा सकें। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात के सर्वे के अमल का जायजा लिया। उधर कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, कमिश्नर की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल और मुश्किलात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की और नुकसानात के सर्वे के अमल का जायजा भी लिया। कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि मुल्तान सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के तखमीने का सर्वे जारी है। मुल्तान तहसील में मजमूई तौर पर 267 टीमें सर्वे कर रही हैं। हासिल मालूमात की नादरा समेत दीगर इदारों से तस्दीक हो। मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी बैंक ऑफ पंजाब के जरिए होगी। सर्वे 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शिकायत के अजाले के लिए कमेटी 7 दिन में फैसला करेगी। उधर कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी का अलीपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, डीसी मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जपा, डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह और एसी अलीपुर भी हमरा थे। कमिश्नर की मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल और मुश्किलात बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर ने सर्वे टीमों के काम का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने हिदायत की कि सर्वे डाटा मेरिट और शफाफियत के साथ मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि मुतासरा खानदानों की बहाली और रिलीफ सरगर्मियां शफाफ अंदाज में जारी हैं। कमिश्नर ने अलीपुर सीतपुर रोड का भी मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन, सरकारी और निजी तंजीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में निजी तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 700 कंबल तकसीम किए गए। कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद वक्त की ज़रूरत है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के नुकसानात के बाद मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी। निजी तंजीम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 700 कंबल तकसीम। मौसम सरमा की मुनासबत से घरेलू इस्तेमाल की दीगर चीजें भी फराहम की गयी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन सरदार अजमल खान चांडिया की तकरीब में शिरकत। कहा, निजी तंजीमें सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग खुले आसमान तले बैठे हैं लेकिन हमारे पास ना चादरें हैं, ना गर्म कपड़े हैं, ना ब्लैंकेट्स हैं। तो इस वक्त आज हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वो गर्म कंबल है, इसमें कपड़े हैं और हाइजीन किट्स दे रहे हैं हम लोग। ये लोगों की जरूरत के मुताबिक दिया जा रहा है। यहाँ पहले सर्वे किया गया था घर घर जाकर, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जारी। उधर लिया में भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जिले इंतजामिया मुतहर्रिक, समाजी शख्सियात की काविशों से 100 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार, ADCR शाहिद मलिक और CEO हेल्थ ने चेक तकसीम किए। कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए समाजी इदारों की काविशें काबिल तहसीन हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद वक्त की जरूरत है। और यहाँ इंतहाई गरीब लोग हैं। हमने इन लोगों को डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस से और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जनाब शहद रियाज साहब के रेफरेंस से काफ़ी NGOs को यहाँ बुलवाया और उनसे लोगों की मदद के लिए चेक वगैरह, इमदाद वगैरह ली जो हमने लोगों में तकसीम की। कुछ हम एज ए मुखैर हजरात भी खुद पैसे इकट्ठे करके लोगों में हमने तकसीम किए हैं। शुजाबाद में भी अल मदीना फाउंडेशन की जानिब से मौजा धोंदू में राशन तकसीम किया गया। कहा, सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन की बड़ी तादाद परेशान है। मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद के लिए शाना बशाना खड़ा है। राशन, खाना पीने का सामान, खैमा और सोलर पैनल की तकसीम की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से इंसानी जिंदगियां ही नहीं जानवर भी मुतासिर हुए। मुतासरा जानवरों की फलाह बहबूद के लिए बरूक फाउंडेशन की खिदमत जारी। राशन, अद्वियात और चारा जानवरों के मालिकान में तकसीम किया। कहा, आफात में इंसान और जानवर दोनों मुतासिर हुए हैं। शहर ओलिया में स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान, बेशतर शाहराएं अंधेरे में डूब गई। जिला कौंसिल की नाअहली के बायस बोसन रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की अदम दस्तयाबी। औनाबाद इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल बात करें तो मुल्तान शहर में रात के वक्त चोरी डकैती की वारदातें होना मामूल बन चुका है। इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक हादसात भी रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स ना होने से जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है और मुल्तान शहर जो है इस वक्त तारीखी में डूब चुका है।
मुल्तान शहर की कई अहम शराहें ऐसी हैं जहां पर न सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है बल्कि स्ट्रीट लाइट पोल्स जो हैं वो भी नस्ब इंतजामिया की जानिब से नहीं किए गए। इस वक्त जो है हम मुल्तान बोसन रोड पर मौजूद हैं, अहम तरीन रोड है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट पोल्स जो हैं नस्ब ना होने की वजह से मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा है। अगर आप अभी भी यहाँ के मनाजिर देख पाएँ तो आपको जो है यहाँ पर तारीखी ही नज़र आ रही होगी और इसके साथ साथ जो है शहरियों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि मुल्तान की अहम शराहें हैं जिसमें ये बोसन रोड है, एयरपोर्ट रोड है, इसके अलावा जो है मुल्तान निश्तर रोड है और कचहरी रोड, MDA रोड, तो तमाम रोड जो है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट पोल नस्ब नहीं किए गए वहाँ पर स्ट्रीट लाइट पोल्स लगाए जाएँ, स्ट्रीट लाइट को रोशन किया जाए। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, कमिश्नर मुल्तान की जानिब से लाइट मॉनिटरिंग स्क्वाड भी तश्कील दिया गया था जिससे जो है इंस्पेक्शन के बाद लाइट मॉनिटरिंग स्क्वाड का काम था कि वो इलाके जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट पोल्स लगाकर जो है उसको रोशन किया जाए। मगर स्ट्रीट लाइट मॉनिटरिंग स्क्वाड की जानिब से ताहाल जो है वर्किंग मुल्तान शहर में काफ़ी मायूस कुन दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ मुल्तान शहर जो है रात के तारीखी में डूब चुका है। मुल्तान शहर में चोरी डकैती की वारदातें और एक्सीडेंट होना मामूल बन चुका है। जी, ऑन अपडेट करने का शुक्रिया। को बताएं कि मुल्तान इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली, ज़करिया टाउन की गलियां और सड़कें शदीद खस्ताहाली का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ने और मट्टी पत्थर जमा होने से मकीनों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली की झूलती तारों ने भी खतरात में इजाफा कर दिया है। इंतजामिया शहर में सड़कों और गलियों के मसाइल हल करने में नाकाम। ज़करिया टाउन की अक्सर गलियां खस्ताहाल और सड़कें बदहाल हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ने और मिट्टी पत्थर जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना है। सड़कों की बदहाली से ताजिर और इलाका मकीन शदीद परेशान हैं। कहते हैं यहाँ आबादी और कारोबार तेजी से बढ़ा मगर अरसा दराज से सड़कों की मुरम्मत नहीं की गई। ट्रैफिक को बहुत बड़ा मसाइल होता है और यहाँ पर काफ़ी धक्के रखते हैं, चीज़ें गिर जाती हैं, बारिश आ जाओ तो बहुत बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, काफ़ी मसला। ताजरों का कहना है टूटी फूटी सड़कों के बायस आए रोज हादसात मामूल हैं, कारोबार भी मुतासिर होने लगा है। दूसरी तरफ बिजली की तारों के बेहंगम जाल भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं जिनसे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। तकरीबन भाईजान 4-5 साल हो गए इसको रोड बिल्कुल भी नहीं इन्होंने बनाया। सीवरेज की भी प्रॉब्लम है, यहाँ एक बारिश हो जाए तो आधा फुट पानी खड़ा हो जाता है और बिजली की तारों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कभी इधर तार गिरी हुई कभी उधर तार गिरी हुई। इसको ठीक करना चाहिए और ये ज़करिया टाउन मेन है, मतलब एक मेन बड़ा है ये वाली। शहरियों का शिकवा है मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के साथ साथ तारों को भी फौरी दुरुस्त करवाए। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। सरगोदा में मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी 35 बरस बाद भी नामुकम्मल। लाहौर रोड पर यह कॉलोनी अरबों रुपए मालियत से बनाई गई थी। हुकूमत ने यह मेगा प्रोजेक्ट शहरियों को जदीद रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किया था मगर आज भी ये वीरानी और उजड़े हुए जंगलात का मंजर पेश कर रहा है। सरगोदा में मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी 35 बरस बाद भी मुकम्मल न की जा सकी। इब्तदाई मनसूबा बंदी के तहत इस सरकारी हाउसिंग सोसाइटी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, तालीमी इदारे, मार्केट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जानी थी मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमत की अदम तवज्जो और अमली इकदाम के फुकदान ने इस मनसूबे को खंडर बनाकर रख दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत की तरफ से बारहा मरतबा वादे और ऐलानात किए गए लेकिन किसी ने भी संजीदगी के साथ ये मंसूबा मुकम्मल करने की कोशिश नहीं की। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद हाउसिंग सोसाइटी में खाली प्लाट्स, उगी हुई झाड़ियां और टूटी फूटी सड़कें हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे की बहाली और तकमील के लिए अमली इकदाम किए जाएं ताकि इन्हें बेहतर रिहायशी सहूलियात मुयसर आ सकें और सरगोदा शहर में बढ़ती हुई आबादी के दबाव को कम किया जा सके। उस्मान शेख, रूही, सरगोदा। मुल्तान सब्जी मंडी के मसाइल जूं के तूं बरकरार। भत्ता माफी एंट्री फीस कीमत में 20 से 50 रुपए तक नाजायज पर्ची वसूल करने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुल्तान सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी का अमला आवाम से भत्ता लेने लगा। सब्जी मंडी में एंट्री फीस की नाजायज वसूली पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी कहते हैं अमला 20 से 50 रुपए तक पर्ची के पैसे ले रहा है जो कि नाजायज है। ठेकेदार दोनों हाथों से आवाम को नोचने लगे हैं। जी रेड लिस्ट के पैसे ले रहे हैं 20 रुपए, इसके अलावा 20 रुपए लेते हैं बाहर जाने के, पर्ची के अंदर आने के 20 रुपए। ये जगह टैक्स है, गुंडा टैक्स भाई। माल लेके जाएंगे तो नहीं तो फिर बदतमीजी करते हैं, लड़ते हैं।
मारते हैं, रक्षाबंधन करने की धमकी देते हैं। शहरियों का कहना था कि घर के लिए सब्जी खरीदने आए हैं, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ये सब्जी मंडी कम और गुंडागर्दी की जगह ज्यादा लगती है, क्योंकि अगर पर्ची की फीस ना दी जाए तो गालम गलोच और हाथापाई करते हैं। जिसने घर की सब्जी लेनी हो उन्होंने 20-50-2500 रुपए बचाने चक्कर में मंडी आते हैं। ये लोग फिर भी भत्ताखोरी के वद में, अब कोई भी भत्ताखोर नजर नहीं आ रहा, सारे अपने अपने ठिकाने पे चले गए हैं। वो देखो सारे कोई नहीं है, 10 मिनट के बाद मीडिया चली जाएगी तो सारी आवाम दोबारा आएगी। शहरियों और आड़तियों का मुतालबा है कि कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मामले का फौरी नोटिस लें, ताकि सब्जी मंडी में जारी लूट मार का सिलसिला बंद हो सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। भावलपुर गल्ला मंडी में गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपए तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब। सैलाब के बाद अशिया खोरोनोश की कीमतों में इजाफे का रुझान। पहले चीनी महंगी हुई, अब गंदम की कीमत बेकाबू हो गई है। भावलपुर में किसान से 2200 रुपए मन खरीदी गई गंदम की कीमत गल्ला मंडी में 3800 रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही सरकारी नरखों पर मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब हो गया है। आटा चक्की मालिक मोहम्मद मुनीब का कहना है कि मार्केट में गंदम महंगी है, वो सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते, इस वजह से आटे की फरोख्त बंद कर दी है। जी जनाब, कभी तो हमें गंदम मिलती नहीं है, या मिलती है तो 3800, 4000, 4100 रुपए गंदम मिलती है, कभी तो फिर खुद मिलती ही नहीं है। तो इसलिए हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। कोई हमें आता है तो उसको आटा पीस के दे देते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वैसे तो हमने आटा पीना ही बंद कर दिया है, गंदम के हालात भी नहीं है, या फिर गवर्नमेंट आ जाती है, फाइन वगैरह कर जाती है, इससे अच्छा तो हमने आटा ही बेचना बंद कर दिया। शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि चक्कियों पर आटा 4400 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1550 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। आटा चक्की मालिकान कहते हैं सिर्फ अपनी गंदम लाने वालों को ही आटा पीस कर दे रहे। आटा चक्की मालिकान का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान गंदम की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और भावलपुर की ओपन मार्केट में गंदम का रेट 4000 रुपए फी मन तक गया था, जो अब 3800 रुपए मन हो गया है। गंदम सस्ती होने पर ही सस्ता आटा दस्तयाब हो सकेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। कि खानपुर के मारूफ शॉपिंग सेंटर अहमद माल की लिफ्ट में नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक नौजवान जाहिर लिफ्ट की मुरम्मत के दौरान हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद लाश बाहर निकाली। जाँ बहक होने वाले नौजवान के वरसा का अस्पताल के बाहर एहतजाज। वरसा ने इल्जाम लगाया कि जाहिद को गैरत के नाम पर बुलाकर मुनज़्ज़म साजिश के तहत कत्ल किया गया है। मकतूल जाहिद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मालिकान मौके से फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जनूबी पंजाब में सरकारी और इंतजामी अफसरान शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एक्सीडेंट रेवेन्यू कमेटी का इजलास। डीपीओ मोहम्मद अफजल की इजलास में शिरकत। इजलास में ट्रैफिक हादसात की वजूहात का तफसीली जायजा लिया गया। रोड सेफ्टी रूल्स पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली बारे भी गौर। डिप्टी कमिश्नर की ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की हिदायत। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा की जेर सदारत मदारस रजिस्ट्रेशन इजलास। ADCG मौलाना मोहम्मद अकरम कांजू और कारी हबीबुर रहमान की इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर लुबना नजीर का कहना था कि रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना है। जिला के मदारिस के रजिस्ट्रेशन के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स रजिस्ट्रेशन बारे उलमाए कराम की मुआवनत करेंगे। उलमाए कराम की सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उर्दू में जारी कर रहे हैं। जिला भर में 172 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर कर ले गए हैं। CEO एजुकेशन लिया डॉक्टर अब्दुल कयूम खान के सरकारी स्कूलों के दौरे। CEO एजुकेशन ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक 151 का दौरा किया। क्लासरूम्स और असातिज़ा की हाजिरी चेक की। वालिदैन व्हाट्सएप ग्रुप्स को फाल बनाने की हिदायत भी की। कहा सरकारी स्कूलों में मायार तालीम भी शानदार हो चुका है, मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी हेल्थ और पॉपुलेशन की हिदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी शहबाज हुसैन का शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा। DG हेल्थ और CEO हेल्थ भी हमरा थे। MS ने स्पेशल सेक्रेटरी को सहूलियात और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और स्टाफ की हाजिरी चेक की। मरीजों और लवाहिकीन को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। अस्पताल में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम का 3रा फेज शुरू हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फ्लैगशिप प्रोग्राम धीरानी फेज 3 का आगाज। सुपरवाइजर महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल यजमान फरहान वहीद के मुताबिक धीरानी प्रोग्राम फेज 3 के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हो गया है, जिसमें तस्दीक के बाद फाइनल होने वाली दरखास्त दहिंदगान को जहेज और सलामी की रकम बजरिया चेक दी जाएगी। आज हमारे पास सोशल वेलफेयर ऑफिस में धीरानी प्रोग्राम की वेरिफिकेशन चल रही है, जिसमें 100 प्लस फेज 3 में एप्लीकेशन आ चुकी हैं और इनमें हम लोगों को वेरिफिकेशन कर रहे हैं। दुल्हन आ रही है, इसमें उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। इससे पहले जो हमारे फेज 2 फेज चल चुके हैं उसमें 100 प्लस शादियां हम तहसील यजमान से करवा चुके हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे मुस्तहिक घरानों की बच्चियों की शादियों में मदद करना है जिनके वालिदैन के पास जहेज और शादी के खर्चात के लिए नाकाफी वसाइल हैं। धीरानी प्रोग्राम के तहत हुकूमत की तरफ से उन बच्चियों को शादी के मौका पर न सिर्फ जहेज का सामान दिया जाता है बल्कि बतौर सलामी 2,21,000 रुपए भी फराहम किए जाते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का धीरानी प्रोग्राम हजारों मुस्तहिक खानदानों के लिए उम्मीद की किरण। उनका ये इकदाम मुआशरती नाहमवारी को कम करने और हर बेटी को खुशगवार नई जिंदगी शुरू करने का मौका फराहम करने में मददगार साबित हो रहा। कैमरामैन अली नासिर के साथ शेख वसीम अली, रोही, यस।